سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم اللہم ربنا ربنا آتنا آتنا فی الدنیا فی الدنیا حسنة حسنۃ وفی سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم اللہم ربنا ربنا آتنا آتنا فی الدنیا فی الدنیا حسنة حسنۃ اکبر ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة الا باللہ الا باللہ العلی العلی العظیم العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة الا باللہ الا باللہ العلی العظیم العلی العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ الحمد للہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ الحمد للہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ الا اللہ ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة الا باللہ الا باللہ العلی العلی العظیم العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ الحمد للہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة الا باللہ الا باللہ العلی العظیم العلی العظیم اللہم اللہم ربنا ربنا آتنا آتنا فی الدنیا فی الدنیا حسنة حسنۃ وفی الآخرة وفی الآخرۃ حسنة وقنا وقنا عذاب النار عذاب النار اللہم اللہم ربنا ربنا آتنا آتنا فی الدنیا فی الدنیا حسنة حسنۃ وفی الآخرة وفی الآخرۃ حسنة حسنۃ وقنا وقنا عذاب النار عذاب النار اللہم اللہم ربنا ربنا آتنا آتنا فی الدنیا فی الدنیا حسنة چلو اوپر چلو اب اوپر چلو چلو جو اوپر چڑھ سکتا ہے تو اوپر چلو نہیں چڑھنا ہے کہ ہر کسی کا عمل کرنا خود کا ادھر ہے ٹھیک ہے نا، کیونکہ ادھر کھڑا ہونا، ادھر دعا مانگنا وہ بھی سب سے افضل ہے. یہ نہیں کہ اس کے اوپر پہاڑ کے اوپر جانا ضروری ہے. اگر اس کے اوپر پہاڑ کے اوپر جانا ضروری ہوتا تو یہ ترکی لوگ جو کھڑے ہیں سب سے پہلے یہ لوگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی حکومت رہی ہے یہاں پر 100 سال سے زیادہ حکومت انہوں نے کی ہے. یہاں پہ عثمانیہ کی حکومت رہی ہے. یہ جو اس کے اوپر پہاڑ کے اوپر جو پلر بنا ہوا ہے نا، مینار بنا ہوا ہے، یہ ترکی کی حکومت نے لگایا تھا کہ یہ پہاڑ سب پہاڑوں سے الگ لگے، مختلف لگے، کہ وہ رات کو آتے عبادت کرتے. اس کے اوپر لوہے کی سیٹ نظر آئے گی، دیکھیں غور سے. اس کے اوپر چاگا کرتے تھے. یہ پہاڑ سب پہاڑوں سے الگ لگے. ہمارے حاجی بھاگ کے جاتے ہیں کہ شاید یہ زیارت ہے اس کے اوپر، اس کو جا کے چومتے ہیں، نام لکھتے ہیں، سیلفی بناتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پہاڑ کے اوپر نہیں گئے تھے. آپ اس کے دامن میں آپ نے دعا فرمائی تھی. اور جو آپ کی اونٹنی تھی، جو قصوہ نامی اونٹنی تھی، جس نے 4.5 گھنٹے تک آپ سے سب نے جس میں بیٹھ کے دعا فرمائی. اور جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض جگہ تک ظہر سے لے کر مغرب تک آپ نے دعا فرمائی. آپ نے جو حج کا خطبہ دیا تھا نا، وہ بھی اس کے دامن میں دیا تھا، اس کے اوپر نہیں دیا تھا. اگر اس کے اوپر دامن دیتے اس ٹائم تو اسپیکر کوئی نہیں تھا،
कोई चीज़ नहीं थी, दुनिया तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन किसके दामन में आपने खुतबा दिया। और हज़रत आदम अस्सलाम और अम्मा हवा की बात रह गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा का कद इस पहाड़ से बड़ा था, इस पहाड़ से छोटा नहीं था, इस पहाड़ से बड़ा था। जिस जगह ही हम खड़े हैं ये भी पहाड़ का हिस्सा था। इसको काट काट के दिला के बिल्कुल रोड बना दिया, जैसे कि आम पहाड़ हैं ऐसे पहाड़ था ये, इसको काट काट के उन्होंने रोड बना दी कि हाजियों के लिए सहूलत के लिए बना दिया। लेकिन यहाँ दुआ करना सबसे अफजल है, क्योंकि हज के दौरान भी लोग यहीं पे दुआ करते हैं। पहाड़ के ऊपर ज़्यादा तो नहीं होता, जब दामन में दुआ करना है। अब आप पे डिपेंड करता है, जिसको दिल करता है जाने के बेशक चला जाए, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, ठीक है ना। अगर जिसका दिल मानता है यहाँ से दुआ करना चाहे दुआ कर सकते हैं, और जिसको ऊपर जाना है उसको 20 से 30 मिनट लग देंगे। वो देखिए वो लोग घूमते हुए जा रहे हैं, वो पीछे से, वो लास्ट में जाएंगे, लास्ट में जाकर फिर पीछे ऊपर चढ़ेंगे। रास्ता आने के लिए ये है सिर्फ, बस उसके अलावा नहीं। अब जैसे आप डिसाइड करें, मैं हाजिर अब काम किया। और बाज़ किताबों में आता है कि 3 रातें थी और 2 दिन थे, लेकिन क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने कंधे मुबारक पर बिठा के पहाड़ के ऊपर लेके चढ़े। ये नहीं कहा कि मैं थक गया या सांस ले लूं, ये नहीं कहा, लेकिन अपने कंधे मुबारक पे बिठा के लेके चल रहे हैं। किस तरह चल रहे हैं? हाथ की हथेली और पाँव के पंजों के बाद चल रहे हैं। अगर हम एक बोरी रख के भी चढ़ें तो हम झुक के चलेंगे। लेकिन क्या, जब किसी ने पूछा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, ये बताओ जब प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके कंधों पर आए तो आपको तकलीफ हुई होगी, चलने में दिक्कत हुई होगी, परेशानी हुई होगी। मेरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी फरमाते हैं, जब मेरे आका मेरे कंधों पर आए तो ऐसे थे जैसे गुलाब के फूल और मखमल की तरह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसीने की खुशबू मुश्क से भी ज्यादा थी। और ये वही पहाड़ है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे आबिल और काबिल भाई ने भाई को पहला कत्ल किया। और ये वही मकाम है जहाँ पे मकड़ी ने जाला बुना, कबूतरी ने अंडे उतारे और सांप ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को डसा। और ये वही मकाम है जिस औरत ने इशारा किया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते हुए इस पहाड़ की तरफ देखा है, तो अल्लाह ने पत्थर का बना दिया। और ये वही मकाम है कि जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी 11 साल की बच्ची अस्मा, जो मक्का से चली 1 लाख टावर से यहाँ खाना लेकर आ रही है। लेकिन क्या, वल्लाह आलम, ये मेरा रब बेहतर जानता है, या वो बच्ची इस पहाड़ के ऊपर जाती होगी या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ऊपर से तशरीफ़ लाते होंगे खाना लेने के लिए। उस बच्ची को मारा गया। जब आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी चेहरे पे निशान देखा कि कान में बाली नहीं है, चेहरे पे निशान है, कहा कि ए अस्मा तुम्हें क्या हुआ? हंस करने लगी, बाबा मुझे मारा है और मुझसे पूछा है कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं, प्यारे आका कहाँ हैं। बाबा मैंने मार खाई है लेकिन जुबान से नहीं बताया कि मेरे बाबा कहाँ हैं और प्यारे आका कहाँ हैं। वो 11 साल की बच्ची। आज हम थोड़ा चलते हुए थक जाते हैं, अगर हम अपने होटल पे आ जाए, हरम तक भी हमें पैदल जाते थकन हो जाती है। चंद दिन नमाज पढ़ते हैं तो फिर अपने होटल में नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं या लेट नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? हमें सहूलतें मिलने शुरू हो जाती हैं, एसी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, सोना भी मिल रहा है, नेट भी मिल रहा है। लेकिन कभी ये सोचा है कि हम जिस मकसद के लिए आए वो मकसद हमारा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा? हम जिस मकसद के लिए आए वो पूरा हो रहा नहीं आ रहा। हम जिसके लिए आए उसको पूरा करें, अल्लाह हर ऐशो आराम दे देगा। अगर देखें किसी को उसके ऊपर आना है, जाना है, फर्स्ट टाइम पे आएंगे, ये बिल्कुल टॉप के ऊपर देखेंगे। एक दफ़ा फिर बताता हूँ, ऊपर टॉप पर जाकर एक छोटी सी गार है, इतनी बड़ी गार नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई बार ज़ियारत की। इसके अंदर बैठ के जाया जाता है, बैठ के नफल अदा किया जाता है, बैठ के ही दूसरी साइड से निकला जाता है। एक कितना सा बच्चा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, जिनके लिए अल्लाह ने पूरी दुनिया, कायनात, ज़मीन और आसमान, मखलूक़ात, फरिश्ते सब बनाए, लेकिन वो क्या इस गार के अंदर रह रहे हैं। अल्लाह से कुछ मांगते क्या ना मिलता, सब मिलता। लेकिन क्या, मदीना इस जानिब था, मदीना इस साइड पे था, लेकिन सफ़र आपने इस साइड पर किया। और क्यों? आजमाइश थी। लेकिन इसी जगह पे मकड़ी ने जाला बुना, कबूतरी ने अंडे उतारे। इंशाल्लाह बकाया तफसील से इंशाल्लाह गाड़ी के अंदर आपको बताया जाएगा। एक छोटी सी दुआ करेंगे, इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे। अगर किसी को आना है, एक जोना आएगा तो 10 रियाल लगेंगे, अगर 4 मिल के आते हैं तो तब भी 10 रियाल लगेंगे आपके। जिसके दिल में ख्वाहिश है आएंगे, टैक्सी वाला आगे उतार देगा, मैं वो जगह भी दिखा दूँगा इंशाल्लाह, वो जगह भी दिखा दूँगा इंशाल्लाह। 10 रियाल लगेंगे। हाँ, अगर किसी ने गाड़ी के ऊपर जाना है 38 रियाल, 38 रियाल एक आदमी के लगते हैं। तो आगे से गाड़ी जाती है, गाड़ी 100 रुपये पे लेके जाती है, कुछ रास्ते पे छोड़ देती है, बाकी रास्ता खुद तय करना होता है। छोड़ के बिल्कुल सामने पड़ेगा, तो जो करेंगे बिल्कुल टॉप के ऊपर सबसे बड़ा पत्थर नजर आ रहा है, सबसे बड़ा पत्थर नजर आ रहा है। ऊपर जाकर फिर एक छोटी सी गार है, जहाँ पर हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने 3 दिन और 2 रातें क़याम किया। और बाज़ किताबों में आता है कि 3 रातें थी और 2 दिन थे।
لیکن کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کے پہاڑ کے اوپر لے کے چڑھے. غار سہور الحمدللہ. ایک اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کے لے کے چل رہے ہیں.